So we have covered the first law of pair factors, second law of dominance, and the third one we have covered is law of segregation. And yesterday we completed the law of segregation. Now coming to the fourth law, that is the law of independent assortment. Right? So that is the fourth concluding law for the by Mendel for his experiments on the inheritance. Okay? So this is the fourth law, that is law of independent assortment. As the name is saying itself, that is, this is independent assortment. Independent means that is the characteristics, the genes, they are not dependent upon one another. Because of the transfer of one character, the another character is not going to hinder or is not going to express more. ठीक है, ऐसा कुछ डिपेंडेंस नहीं है कि एक करेक्टर आया तो दूसरे ने भी साथ में आना ही आना, पहली चीज। और दूसरी चीज कि एक अगर करेक्टर आया है तो वो दूसरे करेक्टर को हिंडर कर दे कि ये साथ आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो इसका एक्सप्रेशन लेस होगा या ज्यादा होगा। तो ऐसी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। दे आर ऑल इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। असॉर्टेड मतलब दे आर बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे आर बीन अरेंज्ड। असॉर्टमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट। सो यहाँ पे डिफरेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकॉर्डिंग दो डिफरेंट करेक्टर्स लिए जाते हैं एट द सेम टाइम। जैसे हमने कल पढ़ा था, we studied about the monohybrid cross, and in that we studied that how it has been just a single you can say characteristic has been inherited from the parents to the offsprings, and what ratio it could provide. Similarly, now we are to start with this law of independent assortment, and here we are going to take two of the characters simultaneously. Now we are going to study that this pattern of inheritance for two characters simultaneously. So what are the two characters we are going to take? That is the seed color and seed shape. So seed color and the seed shape. Seed shape and seed color लिख दो, seed color and seed shape. So this is the two characters that which we are considering. Now what are the dominating features for the seed color? That is seed color में मैंने बताया था, it's a color of the peel, not of the pod kind. Green नहीं है, so it is yellow. So dominating is yellow here for seed color. We are to take parents that which are pure dominant. ठीक है, that is why I am writing capital by capital. And seed shape, that is round, which is again dominating as round. ठीक है, तो हमने दो पेरेंट्स लिए हैं, round and yellow, which is crossed with wrinkled and green. ठीक है, so this is the parent generation, that is we are considering the two parents pure breeds. This is the round and yellow, which is a pure dominant, and this is wrinkled and green. Wrinkled and green, which is a pure recessive. Done. Now further, for this राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये हमारे पास दो करेक्टर्स आ गए, दो पेरेंट्स आ गए। क्रॉस आपने वही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था, दैट इज व्हाट इज अ क्रॉस। नाउ फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन व्हाट इज गोइंग टू बी मेड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट वाज गेमीट्स, है ना। एंड द गेमीट्स में सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं दे आर गोइंग टू सेग्रीगेट, दे आर गोइंग टू सेपरेट आउट। पर यहाँ पे कैसे सेपरेट होंगे, ध्यान रखना कि हमने आर आर्स को वाई वाइज को अलग नहीं कर देना, इस तरह से गेमीट नहीं बनना, क्योंकि हमने अभी क्या बोला है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। सो इसके अकॉर्डिंगली हर करेक्टर जरूरी नहीं है कि जैसे अब ये वाले हमारे दो के मीट्स बने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक में राउंड करेक्टर का करेक्ट जो सीड शेप का करेक्टर है वो जा रहा है, और दूसरे में उसके कलर का करेक्टर जा रहा है यानी कि येलो। तो मतलब वन विच इज हैविंग राउंड इज डिवॉइड ऑफ द कलर, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, दूसरी चीज ऐसा भी नहीं है कि अगर एक करेक्टर जा रहा है तो दूसरा जाएगा। सो इसीलिए मेंडल ने ये बताया कि ये जो पेयर पेयर आपका बनेगा गेमीट्स का जब बनेगा, इट विल बी इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, इनकी असॉर्टमेंट हो रही है, अरेंजमेंट हो रही है इन सच अ मैनर दैट ईच ऑफ द इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग इज नॉट डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड मींस इट इज नॉट कि इट इज देयर इज नो चांस कि उनके अंदर ये करेक्टर आए ही ना। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉर्ट होंगे, अरेंज होंगे। Similarly for this is going to be small r small y small r small y. ठीक है, so this is the wrinkled and green. Further
After gametes, there is the first generation which is going to be formed. So F1 generation, first filial generation, how it is going to be formed? It is by the fusion of either of these gametes with either of the other parents. And in all the cases, you are again going to get the characteristics that is of a hybrid, mixed, total mixture. है ना, हाइब्रिड क्या होता है कि फुल मिक्सचर होगा, उसके शेप में भी और उसके कलर में भी, है ना। देखो शेप में भी दोनों आ गए हेटेरोजाइगस और कलर में भी हेटेरोजाइगस दोनों, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आपने इसका पेयर बनाना है, यू नीड टू कीप द वन करेक्टर टुगेदर, ठीक है। जैसे हमारा एक करेक्टर है यहाँ पे सीट शेप का जो हमने पहले लिया, तो पहले आपने सीट शेप ही रखनी है और दूसरा उसका पेयर आपने इकट्ठा बनाना है। ऐसे नहीं करना आर वाई, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखना आपने आर वाई आर वाई, ऐसे नहीं लिखना, दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, नो डाउट द कंसेप्ट इज नॉट रॉन्ग बट द रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग एंड यू वोंट बी गिवन एनी मार्क्स फॉर दैट, ठीक है। एंड the other pair, that is again the same, RRYY. This is again the same, capital R small r, capital Y small y. And this is again the same with the same 4 genes. Now similarly, as we got to have the monohybrids result for first generation, all the organisms are dominant. यहाँ पे भी सारे dominant आ गए। तो एक चीज तो उन्होंने फिक्स कर दी कि जब भी प्योर पेरेंट्स को क्रॉस किया जाएगा, हमेशा हमें डोमिनेटिंग करेक्टर ही मिलेगा। ये उन्होंने कंक्लूड कर दिया यहाँ पे कि डोमिनेटिंग करेक्टर ही मिलेगा जब भी हमारे पास दो प्योर पेरेंट्स आएंगे, प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव। जरूरी नहीं है, पर अगर बोलते प्योर रिसेसिव दो ले लो, फिर क्या आएगा? नहीं, दोनों अगर प्योर रिसेसिव लेंगे तो रिसेसिव सारा ही आएगा, सारा रिसेसिव ही है ना, फिर तो उसमें कोई चांस ही नहीं है कि वो डोमिनेटिंग। सही है, सही है ना, क्योंकि दोनों अगर आप दोनों रिसेसिव्स ले रहे हो, स्मॉल बी ले रहे हो या स्मॉल अदर स्मॉल वाई ले रहे हो, तो वहाँ पे फीचर्स आएंगे ही नहीं जो हमें कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ मैच करना। हाँ, अगर आप आगे जनरेशन में जाके यहाँ सेल्फिंग नहीं करो, आप दूसरा प्लांट इंट्रोड्यूस कर दो, फिर करेक्टर चेंज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूजिंग कुछ भी वो दे सकते हैं एंड दैट इज ओनली योर कंसेप्ट। हियर यू आर नॉट टू क्रैम दिस क्रॉस बिकॉज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आई विल बी टेलिंग यू, ये एज सच क्रॉस बड़ी किस्मत से अगर मतलब आ जाएगा तो आ जाएगा, क्योंकि ये 10th में आ चुके होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए इनके ऊपर क्वेश्चन 12th में नहीं डालते, और डालेंगे तो उन चीज़ों पे जो रिलेशंस हैं इनके, जो इसका कंसेप्ट है उस पर डालें, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया, दीज आर ऑल विद द राउंड एंड येलो करेक्टर, सारे के सारे 100% हमारे पास क्या बने हैं, राउंड एंड येलो सीड्स वाले करेक्टर्स आए। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट वी आर टू प्रोवाइड द सेल्फिंग। Selfing is of first generation to form the next generation. So next generation parents will be selected from the first generation offsprings and they are randomly made a choice for, and all the are same, so that is they are all same, so हमारे पास यही choices हैं, तो हम किसी को भी दो को उठा के आगे फर्दर हाइब्रिडाइज करवा रहे हैं, ठीक है। जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, गेमीट्स बनेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, गेमीट्स बने। अब यहाँ कैसे गेमीट्स बनेंगे, देखो अभी फिर से हमारे पास मेंडल वाला कंसेप्ट आ गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। मेंडल ने बोला कि हर करेक्टर दूसरे करेक्टर के लिए हिंडर नहीं करेगा, यानी अगर राउंड करेक्टर जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर बार उसे कैपिटल वाई के साथ ही आना है, ये ऐसा जरूरी नहीं है। वो राउंड वाला जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है ना। सो दिस कैन बी पेयर्ड अप विद दिस और दिस कैन बी पेयर्ड अप विद दिस, क्लियर, किसी के साथ भी आ सकता है, इंडिपेंडेंट है और अपने आप से अरेंज होकर। सो सिमिलरली अब दूसरा पेयर अगर हम देखेंगे, दिस इज स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, है ना। तो ये है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कल तो मैम ने बोला था कि डोमिनेटिंग हमेशा आगे होना चाहिए और रिसेसिव पीछे होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्यों वैसा, दिस इज नॉट वन करेक्टर, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो एक ट्रेड के नहीं है, ये दोनों अलग अलग के हैं। तो हमने एक करेक्टर जो आगे रखा है, आप यहाँ पे चेंज कर लो इसको ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। पहले सीट शेप आएगा एंड देन सीट कलर, हम लोगों ने सीट शेप जीन पेयर में आगे रखा है और सीट कलर पीछे रखा है। सो जिस वजह से हमें उसकी प्लेस को नहीं चेंज करना, ठीक है। वो चेंज कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे इस क्रॉस को पूरा होने।
कर दोगे, मुझे पता है कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो सिमिलरली अब यहाँ पे भी 4 गेमीट्स बनेंगे। व्हाट आर दोस? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, जितने भी आपको पेयर्स में दिए जाएं, गेमीट्स कैरेक्टर्स कितने भी दिए जाएं, आपने क्या करना है, हमेशा आपने एक पैटर्न फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे है आर आर वाई वाई का पैटर्न है ना, अलग अलग है, चारों चीजें अलग अलग। तो यहाँ पे आप पैटर्न फॉलो करोगे उसके गेमीट्स बनाने में। पहले आर्स को आप 2 बार कैपिटल लिखो, फिर 2 बार स्मॉल लिखो। ठीक है, 2 बार कैपिटल 2 बार स्मॉल। फिर वाइज को क्या किया हमने, वाई कैपिटल वाई स्मॉल, वाई कैपिटल वाई स्मॉल। देखो चारों पेयर्स आ गए अब हमारे पास पॉसिबल, है ना। फर्स्ट करेक्टर ऑलवेज 2 टाइम्स कैपिटल 2 टाइम्स स्मॉल, क्योंकि दो दो ही आ रहे हैं ना, 2 बार कैपिटल आ रहेगा 2 बार स्मॉल आ रहेगा, तो 2 टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल स्मॉल दूसरा फीचर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके गेमीट्स बना। अब नेक्स्ट जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन करी जाएगी, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द गेमीट्स इफ यू आर गेटिंग एनी अदर करेक्टर, तो इजी हो जाता है, थोड़ा सा टाइम भी सेव होता है। सो दिस इज नेक्स्ट इज F2 जनरेशन। अब इसके बाद गेमीट्स के बाद फ्यूजन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो F2 जनरेशन बनेगा। F2 जनरेशन बनाने के लिए अब हमने यहाँ पे पहले तो पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे भी बना सकते हो, नो वरीज विद दैट, कहीं पे भी जहाँ आपको लगता है कि लाइंस के साथ बनाना मुश्किल है, तो वी कैन मेक इट एट एनी साइड। ठीक है, अब F2 जनरेशन के लिए मुझे पुनेट स्क्वायर चाहिए, पर पुनेट स्क्वायर में डब्बे कितने होने चाहिए, बॉक्सेस कितने होने चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ द गेमीट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, the gametes produced here are 4 by 4. 4 into 4 is 16. So we are going to frame 16 of the boxes here. The 16 boxes that which we are going to frame, that will create the 16 new possibilities of organisms. Clear? So the 16 possibilities we are going to frame here, that are, ये मैंने अभी 16 फ्रेमिंग करनी है बॉक्सेस की। दैट इज इट शुड बी 4 by 4, मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, सॉरी 4 रोज में 4 कॉलम्स। ठीक है, सो दिस इज द बॉक्स, राइट। नाउ हियर 4 by 4 है ना, सो 1 2 3 and 4, दिस इज 4। देन नाउ हियर 1 2 3 and 4, so 4 rows, building 4 rows and 4 columns। ये बन गया 16 by 16 का बॉक्स, दैट इज अ पुनेट स्क्वायर। डन। Now again you have to provide the gametes here। अब जब gametes देखो वापस कॉपी करने हैं तब भी गलती हो सकती है। अब जब आपका पैटर्न सेम है, आप यहाँ लिखो बेधड़क होके, दैट इज आप अच्छे से इसका पैटर्न सेम रख सकते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे किया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे ही बनते है ना। तो पैटर्न फॉलो करो एंड योर दिस आंसर विल बी वेरी इजीली फ्रेम्ड। कोई भी आपको अल्फाबेट्स दिए जाए, अब आपने करना क्या है इसमें फ्रेमिंग में, हमारे पास क्या आया, पहली चीज ये प्योर डोमिनेटिंग आएगा, ये कॉर्नर प्योर डोमिनेटिंग का होगा, बाकी इसमें हाइब्रिड्स बनेंगे। और ये प्योर रिसेसिव का होगा, ये वाला कॉर्नर। आप मैच करके देख लो, आर आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल। ठीक है, थर्ड थिंग इज, ये दो चीजें आपकी इजी हो गई सॉर्ट आउट करने में। थर्ड है आपका ये सारा डायगोनल जो आएगा, ये चारों बॉक्सेस प्योर हाइब्रिड्स के आएंगे, यानी ये वाला कंडीशन, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैच करके देख लो, सेम आ रहे हैं। लेट्स से यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इधर से आया, स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये चारों हाइब्रिड्स आपके डायगोनल में आएंगे। अब आपको 16 में से 6 तो इजीली फ्रेम हो गए, इनमें टाइम सेव हो गया। बाकी 10 को आप लोग खुद करेंगे, फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सभी के लिए हमने इसकी पेयरिंग करनी है। दिस इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसी तरह सारा इसका बॉक्स कंप्लीट कर लो। ठीक है,
I'm leaving some space down the genotype because we have to also enlist the phenotype in the same box. Okay. So small r, capital Y, then small r, capital Y. Then here capital R, small y, small. Then this is small r, capital Y, small. ठीक है. अब और एक चीज हमारे लिए आसान हो जाएगी, फिनोटाइप देना. जब हमने फिनोटाइप देना है तो ये हमारे पास प्योर रिसेसिव है. प्योर रिसेसिव कौन था? रिंकल्ड एंड ग्रीन, है ना. तो इसके लिए फिनोटाइप क्या आया? दिस इज द वन बॉक्स विद रिंकल्ड एंड ग्रीन. फिल्टरेशन आसान हो जाती है, बस और कुछ नहीं है. आपको दो फीचर दें, कोई भी दो फीचर्स दें, आपको हाइट का और फ्लावर कलर का दे दें, फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन का दे दें, अल्फाबेट्स चेंज करके दें, आपके फटाफट बनेंगे अगर आप इस कंसेप्ट से बनाते हैं. ठीक है. देन उसके बाद ये जो तीन बॉक्सेस आ रहे हैं इस कॉर्नर में, दे विल बी नाउ द मिक्सचर ऑफ रिंकल्ड एंड येलो. ठीक है. अब ये शिफ्टिंग हो रही है ना करेक्टर की, तो ये आएंगे हमारे पास रिंकल्ड एंड येलो. इसके अलावा रिंकल्ड एंड येलो कोई नहीं है पूरे बॉक्स में. आप देख लो, रिंकल्ड एंड येलो कोई नहीं आएंगे. So this is wrinkled and yellow, wrinkled and yellow. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या हो गए? तीन रिंकल्ड येलो हो गए, एक रिंकल्ड ग्रीन हो गए. तो पहले हम यहाँ पे फीचर्स लिख ही लेते हैं. ये दो हमारे पास डोमिनेटिंग फीचर के साथ आएंगे, दो रिसेसिव फीचर के साथ आएंगे. तो जब हमने इनके मेंशन करने हैं फीचर्स, ठीक है, सो लेट अस मेंशन द फीचर्स ओवर हियर. सो यहाँ पे हमारे पास चार फीचर्स कौन कौन से आ रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट, दैट इज द लास्ट वन. इट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन. सो रिंकल्ड एंड ग्रीन. ठीक है. एक फीचर आ गया रिंकल्ड एंड ग्रीन. आई एम राइटिंग WNG. ठीक है. देन एक करेक्टर हमने उठाया रिंकल्ड एंड येलो. सो दिस इज रिंकल्ड एंड येलो. रिंकल्ड एंड येलो तीन आए. ठीक है. रिंकल्ड एंड ग्रीन वन आया. राइट. अब उसके बाद हमारे पास अब ये सारे हैं जिनमें राउंड डोमिनेटिंग है ये सारों में. और राउंड्स के साथ एक करेक्टर, अब हमें इधर से राउंड को भी तो दोनों के साथ लेना पड़ेगा ना. राउंड को ग्रीन के साथ, फिर राउंड को येलो के साथ. तो डोमिनेटिंग आएगा राउंड एंड येलो क्योंकि वो डोमिनेटिंग है. और राउंड और ग्रीन हमारे पास हाइब्रिड है. ठीक है. राउंड एंड ग्रीन. अब राउंड एंड ग्रीन ढूंढने हैं आपको, तो दिस इज राउंड एंड ग्रीन. मतलब अब आसान हो जाता है. जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजीली ये लोकेट हो जाएंगे. सिर्फ आपको वर्क करना पड़ेगा इन चार को छोड़ के बाकी 12 के. ठीक है. 12 में भी आपको ये सामने ही नजर आ रही है पूरी लाइन राउंड एंड येलो की होगी क्योंकि ये राउंड एंड येलो का. ये भी पूरी लाइन राउंड एंड येलो की होगी. ये राउंड एंड नहीं, ये वाला येलो नहीं है, सॉरी. तो राउंड एंड येलो की ये पूरी लाइन है. ठीक है. राउंड एंड येलो, राउंड एंड ये तो हो गए चारों. चार इधर चार इधर, पर बाकी हमने लिखने हैं. तो राउंड एंड ग्रीन ये आ गया, एक ये आ गया राउंड एंड ग्रीन. तो कितने हो गए राउंड एंड ग्रीन? 1 2 3. सो दिस इज 3 एंड रेस्ट ऑल आर राउंड एंड येलो. ठीक है. ये चार तो है ही है राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड. कितना आसानी से आपका डोमिनेटिंग फीचर भी आपको पता चल रहा है. सो दे आर 9 इन नंबर. इफ यू काउंट, दे आर 9 इन नंबर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. तो अब हमारे पास रेशो क्या बना है? राउंड एंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन. इट इज रेशो इज 9 3 3 1. ठीक है. 9 3 3 1. ये 3 3 आप इंटरचेंजेबली कहीं पे भी डाल सकते हो, उल्टा पुल्टा कर सकते हो, पर ये 9 और 1 फिक्स. ठीक है. कई बार आपको क्वेश्चन में सिर्फ दो ही करेक्टर्स की पूछी जाती है. व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो बिटवीन राउंड एंड येलो एंड राउंड एंड ग्रीन. सो यू हैव टू ओनली से अबाउट दीज टू, दैट इज 9:3. और यू विल बी सेइंग 3:1. क्यों? क्योंकि इन दोनों में देखोगे तो ये तो और लीस्ट हो जाएगी, 3:1 आ जाएगी रेशियो से. ठीक है. तो ये हमारे पास रिलेशन है फिनोटिपिकली. सो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन. नाउ व्हाट अबाउट द जीनोटिपिक रेशियो? 10th में हम लोग जीनोटिपिक रेशियो नहीं करते, बट यहाँ पे है आपको जीनोटिपिक रेशियो की. तो अब जीनोटिपिक रेशियो निकालना इट्स अ बिग वर्क आउट हेयर. पहले यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो आई विल कंटिन्यू फर्दर. Further, we have to frame now the genotypic ratio. So for framing the genotypic ratio, we have to enlist all the genotypes now. ठीक है. Looking to that what is its number, that is साथ साथ में हमने नंबर भी लिख देना है. क्यों? क्योंकि बाद में आप फिर ढूंढोगे कि कौन सा जीनोटाइप कहाँ से देखा था मैंने, है ना. टाइम वेस्ट नहीं करना. तो हमने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है. यू पुट योर लेफ्ट फिंगर ओवर हियर एंड यू स्टार्ट राइटिंग विद द राइट हैंड
ओवर द पेपर। ठीक है, तो आप एक तरफ अपना एक हैंड रखेंगे पॉइंटिंग करते हुए, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे सीरियल ऑर्डर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है दैट इज कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट जीनोटाइप, राइट। एंड इसमें मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का ये है, ये एक का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रेशियो में फर्दर। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर से इनिशियल कर दो 1। अगला देखो स्टिल डिफरेंट है, दैट इज कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इनिशियल कर दो 1। इनिशियल साथ साथ करते जाना। ठीक है, अब ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, क्योंकि हमें पता है कि ये 4 हैं, है ना, क्योंकि मेरा वाला पैटर्न फॉलो करोगे तो बड़ी आसानी से ये चीज़ें आपकी शॉर्टकट होती जाएगी, टाइम सेव होता जाएगा। अब ये 4 हैं तो मैंने सीधे यहाँ पे 4 लगा दिए। अब वापस मुझे इसके लिए रुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला फीचर देखो, ये ऑलरेडी आ चुका है ना, ध्यान रखना है हमने। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई आ चुका है, तो इसको हमने डबल कर दिया। ठीक है, आपने इसी का नंबर बढ़ाना है, इसको अलग नहीं लिखना। और अगर आपका रेशियो गलत होता है तो पूरा क्रॉस होता है, ये पूरा क्रॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अभी तक नहीं आया पेयर, नेक्स्ट लिख दो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल। ठीक है, अब हमने ये करेक्टर देखा राउंड एंड ग्रीन था, और ये राउंड एंड ग्रीन 3 में ही आया हुआ है, तो डायरेक्टली मैं 3 यहाँ पे लिख देती हूँ। डन। ये भी चीज़ें आसान ही हो रही है ना आपके लिए, क्योंकि ये पहले से ही 3 में आया है, सिर्फ राउंड एंड येलो ऑटो में है ही नहीं पॉसिबल, तो हमने पहले ही 3 लिख दिया, 3, राइट। कमिंग नेक्स्ट कैपिटल आर, ये हमारा हो चुका है हाइब्रिड, नहीं देखना। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, पहले आया क्या? नहीं आया। अब नेक्स्ट लिख देते हैं अलग से, कैपिटल आर, नहीं ये आ चुका है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ओके सॉरी सॉरी, हमने फिनोटाइप के अकॉर्डिंग नहीं लिखना, जीनोटाइप के अकॉर्डिंग लिखना, तो पहले यहाँ पे मैं 1 ही डाल देती हूँ। सो दिस इज कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इसका मैंने इनिशियलाइज 1 कर दिया राउंड एंड ग्रीन में, क्योंकि इनमें जीनोटाइप्स अलग अलग हैं। ये कैपिटल आर था, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर है, तो अलग अलग लिखना। ठीक है, फिनोटाइप के अकॉर्डिंग नहीं लिखना। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट फर्दर रेशो। फर्दर क्या आया, इसके आगे जाएंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई आ चुका है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इसको 2 कर। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे थे हम, नेक्स्ट इज कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। स्मॉल आर, नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट में मैं यहाँ लिख देती हूँ स्मॉल आर, कैपिटल वाई। सो दिस इज 1 इनिशियल। ठीक है, 1 इनिशियल कर दिया हमने। फर्दर कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, पहले आया नहीं आया, तो नेक्स्ट लिख देते हैं अलग से 1। ओके, ये आ चुका है, 4 लिख चुके हैं हम। कमिंग टू दिस कैपिटल आर, स्मॉल वाई ऑलरेडी आ चुका है, ये रहा। सो अब इसको हमने 2 बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी आ चुका है। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो ये रहा हमारा 2। एंड लास्टली दैट इज स्मॉल आर, स्मॉल वाई, दैट इज 1। ठीक है, तो अब इसके काउंट करके देखते हैं, इज इट 16 ऑर्गेनिजम्स? जस्ट काउंट दीज नंबर्स प्लीज। 16। ठीक है, so if your these count is coming out to be 16, that means you are correct and your answer is correct. ठीक है, बट अगर इसको और ब्यूटीफुली रिप्रेजेंटेशन करना है, यू सी देयर आर 2 वंस, ये 2 वंस एक तरफ आ जाएंगे ऑन द सेंटर। ठीक है, ये सेंटर में आएगा 4, 4 वाला नंबर जो है वो सेंटर में आता है। जस्ट एज अ रिप्रेजेंटेशन, शायद आपकी बुक में भी इस तरह से बनी होगी, 2 1 इधर आएंगे, 2 1 इधर आएंगे, फिर उसके बाद 2 2s आएंगे, 2 2s आएंगे और एक 4 आएंगे। ठीक है, तो एक सिमेट्रिकल हमारे पास पूरा प्रॉपर बन जाता है। आप वैसा भी बना सकते हैं, आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं। एंड एनी वेज द टीचर विल बी लुकिंग फॉर योर जीनोटाइप एंड लुकिंग फॉर योर दिस नंबर। कोई भी बीच में से उन्होंने रैंडमली 2 3 चेक कर लेने होते हैं, और अगर वो सही है तो ये सारा सही है। नहीं तो अगर कोई टीचर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा अच्छे से इसकी नॉलेज रखने वाला है, तो उनको ये याद भी हुआ बड़ा होगा सच। ठीक है, तो वो पूरा भी चेक कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके बीच में से देखा जाएगा। बट यूजुअली व्हाट दे डू इज दैट इज दे फिगर आउट सम ऑफ द जीनोटाइप्स एंड दे लुक फॉर दैट। ठीक है, ये जो 16 के आपने बनाए पेयर्स, तो इन 16 ऑर्गेनिजम्स में से वो 4 या 3 कुछ भी देख सकते हैं एंड दे कैन पिक अप। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस सेकंड जो हमारे पास आया है लॉ ऑफ, सॉरी, फोर्थ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल, एंड द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज इन मॉडरेट जेनेटिक्स,
that has been explained. This is a law of independent assortment. Okay. ना exceptions में हमने एक exception किया था, that is of incomplete dominance, उसका cross भी complete करना है. उसके साथ साथ हमारे पास और exception आता है, that is of co-dominance. ठीक है. So your time is going to be over, just 2 minutes. If you have any doubt till this, you can ask me, and otherwise we will be continuing this incomplete dominance and co-dominance tomorrow. Okay. And on Friday you are going to have the test till the topics covered. I guess we will be completing all the laws of inheritance. टेस्ट क्रॉस भी आपको कल करवाना है. लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आपके सारे हो जाएंगे एंड अलॉन्ग विद देयर एक्सेप्शंस एंड एवरीथिंग. इनहेरिटेंस ऑफ द जीन्स हो जाएगा एंड आई थिंक आगे क्रोमोसोमल थ्योरी भी हो जाएगी आपकी, बिकॉज सैटरडे को आपका टेस्ट है. सो सैटरडे तक आपका ये सारा डन हो जाएगा. ठीक है. Chromosomal theory of inheritance will be done, I guess. Otherwise, laws of inheritance are already done. Only exceptions are left. That will be done tomorrow. Okay. Anyone having any question?